हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने। पढ़ाने से पहले मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी मैंने आपको समझाया या जो काम दिया घर पे करने के लिए आप उसे कर रहे होंगे। मैंने फर्स्ट लेसन आपको समझाया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसकी जो समरी है वो आपको मैंने अच्छी तरह से समझाई थी। यदि फिर भी किसी को प्रॉब्लम है किसी टाइप की समझने में तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और जो होमवर्क दिया है, फिल इन दी ब्लैंक्स या शॉर्ट क्वेश्चंस जो भी दिए मैंने उनके आंसर भी साथ में दिए हुए हैं, उनकी तैयारी साथ ही साथ करते रहें। आज सेकंड लेसन, प्रोज बुक में जो सेकंड लेसन है आपका, आज उसे समझाएंगे हम। उसकी पहले अंग्रेजी में समझी दूंगा मैं आपको, उसके बाद फिर हिंदी में भी। तो ध्यान दीजिए, ये जो लेसन जो मैं समझाने जा रहा हूँ इसका नाम है अ फेलो ट्रैवलर। अ फेलो ट्रैवलर इज a very humorous essay written by A.G. Gardiner. You know, A.G. Gardiner was a very humorous writer. The aim of his writing was to entertain his readers. And so this present essay is also full of humor. The writer tells us about his experience with his fellow traveler in a very humorous way. It is a personal essay of the writer. One evening, the writer was traveling by a passenger train from London to Midland Town. Midland Town is his home district, home city, where he was going. When the train started, it was full of passengers. But as the train moved forward, all the passengers went away in ones and twos. At last, the writer was left alone. Nobody was there except the writer in the compartment of the train. At that time, the writer felt himself completely alone, and so he tells us in a very humorous way that there are some advantages of being alone in the compartment. There is a pleasant sense of freedom about being alone in the compartment of the train. He says that we are completely free if we are alone. We can enjoy our liberty fully. We can do whatever we like. Nobody will object us. He says again that if a man is alone in the compartment, he can speak as loud as he likes. He can sing or dance in the compartment. He can play marbles on the floor of the compartment. He can open
and shut the window of the compartment. He can enjoy every seat of the compartment. If you want to sleep there, he can sleep in full length. He can enjoy every seat one by one because nobody is there. He can break any law also. But the writer himself did not do anything out of them. He did some general things, very common things, just as when he was sitting on his seat, he was reading a newspaper, he left it aside, he stood up from his seat, he saw through the window of the compartment, and then he came to the other window of the second side. He lit a cigar, then he sat again on his seat and he began to read his newspaper again. When he was reading his newspaper, a mosquito came and sat on his nose. The writer flicked off it and the mosquito went away. It made a journey in the whole compartment, but the mosquito did not find any interesting thing as the writer was sitting in a corner. So the mosquito came back and sat on his neck. The writer flicked off him again. Then it made a short journey again and came and sat on the back of his hand. Now the writer became very angry because he warned him twice, but now the writer is not ready to tolerate such kind of bad behavior of the mosquito. He says that it's enough. Everything has its limits. And now the writer is so angry with the mosquito that he decided to kill it. He says that he was about to sentence him to death, and for this he shows some reasons also. He says that the mosquito was a vagrant, Bhagavan, our. Second charge was the mosquito was a public nuisance. Third charge that it had no meat coupon. And the fourth charge was that it was traveling without a ticket. And so, for all these illegal acts, the mosquito was to be
killed. The writer tried his best to kill the mosquito. He used every tactic, but it was all in vain. He was not successful in killing the mosquito because the mosquito was very clever, very skillful. It avoided every attack of the writer very cleverly and skillfully. When the writer was unable to kill the mosquito, he began to feel some love for the mosquito. He says that the writer and mosquito are mortals. Nobody knows about the mystery of life. The mystery of life is the same. Nobody knows from where we come in this world and where we go after death. It is the secret, it is the mystery of life of every creature and human beings. When he could not kill it, he dropped the idea of killing at last. And in this lesson, the writer wants to give a message to us that we should learn to live with compromise and goodwill. We should not harm anyone because every creature has equal right to live in this world. This lesson of A.G. Gardiner makes us realize that pride and superiority are mere varieties and should be set away. So this is the brief description of the second lesson, A Fellow Traveler. Now I want to tell you the story of this lesson in Hindi also. A.G. गार्डिनर एक शाम को ट्रेन से यात्रा कर रहा था। उसे इंग्लैंड से मिडलैंड टाउन जाना था। इट वॉज द टाइम ऑफ इवनिंग and the train by which he was traveling was the last train and it was a passenger train. जब राइटर ट्रेन की कंपार्टमेंट में बैठा तो पूरा कंपार्टमेंट पैसेंजर से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती गई, इंग्लैंड का आउटर रिंग जैसे ही क्रॉस किया तो सभी पैसेंजर्स एक एक दो दो करके उतरते चले गए। अंत में लेखक A.G. गार्डिनर उस कंपार्टमेंट में अकेला रह गया। तो उसे लगा कि ट्रेन कि कंपार्टमेंट में जब कोई व्यक्ति अकेला यात्रा करता है तो बड़ा सुखद अनुभव होता है। अकेले यात्रा करने के बड़े लाभ होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। तो कहता है कि यदि आप ट्रेन में अकेले हैं तो आप जितनी जोर से बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी आपको ऑब्जेक्शन करने वाला होगा ही नहीं, वहाँ पर कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं।
यदि आप चाहते हैं कोई अपना फेवरेट गाना गाना चाहते हैं, आप गा सकते हैं। आपको लगा कि आप कोई डांस करना चाहते हैं, किसी की नकल करना चाहते हैं डांस करने में, आप वो कर सकते हैं, तो कोई देखने वाला ही नहीं होगा। यदि आप चाहें तो कंपार्टमेंट के फर्श पर मार्बल्स यानी कंचे भी खेल सकते हैं। बहुत सी बातें वो गिनाता है एक एक करके कि आप क्या कर सकते हैं। इनके अलावा भी आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज यू आर फ्री, यू हैव लिबर्टी, यू हैव फ्रीडम टू डू एनीथिंग वट एवर यू लाइक। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आपको वहाँ कोई नहीं रोक सकता। आप यदि चाहें तो कंपार्टमेंट की खिड़की खोल सकते हैं, एक खोल सकते हैं, चाहे तो दोनों खोल सकते हैं, चाहे दोनों को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। एक तरीके से आप इसे एक उत्सव के रूप में बना सकते हैं, ऐसा भी कहता है। बड़े से बड़े कानून को भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ कानून को पता ही नहीं चलेगा कि आपने कौन सा इलीगल काम कर दिया, क्या कानून तोड़ा। कोई आपको सजा देने वाला ही नहीं होगा। लेकिन राइटर ये सब कुछ बड़े ह्यूमरस वे में कह रहा है, हमको एक तरीके से एंटरटेन करने के वे में कहना चाहता है। दूसरी तरफ अपने लिए कहता है कि जब वो अकेला रह गया तो उसने कुछ भी नहीं किया इनमें से। सबको सलाह दे रहा है कि आप कर सकते हैं, अकेले हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्वयं नहीं कर पाया। कहता है कि मुझे उस समय ये दिमाग में ही नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है। जो कुछ भी उसने साधारण से काम किए वो बताता है कि मैं अपनी सीट पर बैठा था अकेला, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। जब पता चला कोई नहीं है, अकेला है, तो न्यूज़पेपर अलग रखा, सीट से खड़ा हो गया। उसके बाद फिर विंडो से झांक के देखा, फिर दूसरी साइड की विंडो से बाहर झांक के देख रहा है, शाम का वक्त है। फिर उसने सिगरेट जलाई, अपनी सिगरेट पी। उसके बाद फिर वापस आके सीट पर बैठ गया एंड देन ही बिगेन टू रीड द न्यूज़पेपर अगेन। फिर से पढ़ने लगा समाचार पत्र को। जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तब उसे आभास हुआ, ही बिकेम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर। वो आभास कब हुआ? जब एक मॉस्क्यूटो यानी मच्छर आकर उसकी नाक पर बैठा। उससे पहले नहीं उसने बताया कि कौन था वो फेलो ट्रेवलर, लास्ट में बताता है कि वो मच्छर था। जब उसकी नाक पे बैठा तो उसने फ्लिक ऑफ कर दिया, उसे झटक दिया, नाक से भगा दिया उस मच्छर को। मच्छर भी फुदकता उछलता हुआ पूरे कंपार्टमेंट में गया। 3 डायमेंशन में उसने एक तरीके से पूरे कंपार्टमेंट को नाप दिया, लेकिन कहीं भी उसे कोई भी चीज़ इतनी इंटरेस्टिंग नज़र नहीं आ रही थी जितना कि राइटर नजर आया उसे। इसलिए वो मच्छर फिर से वापस आया राइटर की अब गर्दन पे आके बैठ। राइटर ने उसे फिर फ्लिक ऑफ किया। इस बार उसने छोटी सी यात्रा की, कंपार्टमेंट की, और फिर से वापस आ गया। अब आकर के वो राइटर के हाथ के पीछे ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड बैठ गया। अब राइटर बहुत गुस्से में आ जाता है, कहता है कि हर चीज की लिमिट होती है, एवरीथिंग हैज इट्स लिमिट। कहता है मैंने 2 बार तुमको वार्निंग दी, लेकिन तुम हो कि मुझे बार बार परेशान कर रहे हो। अब मैं तुम्हारे इस प्रकार के बिहेवियर को सहन नहीं करूंगा। वो कहता है अब मैं एक जज का रोल निभाने जा रहा हूं, जज का रूप लेता। कहता मैं तुमको मृत्यु दंड दूंगा या मृत्यु दंड देता हूं। क्यों देता है? कहता है कि जस्टिस डिमांड्स इट एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपराध करता है तो कानून की ये मांग होती है कि उसको दंड मिलना चाहिए।
और वो दंड निर्धारित करता है कौन? कोर्ट निर्धारित करती है। तो राइटर अब एक तरीके से जज के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है और एक एक करके चार्जेस गिना रहा है उसके कि मैं तुमको क्यों मृत्युदंड देता हूं। सबसे पहला कहता है तुम आवारा हो, वैग्रेंट हो, तुम पब्लिक न्यूसेंस हो, अर्थात पब्लिक को परेशान करने वाले, और तुम्हारे पास कोई मीट कूपन भी नहीं है। थर्ड चार्ज था, यानी कोई लाइसेंस नहीं दिया गवर्नमेंट ने कि आप किसी के भी बॉडी में बैठ जाओ और ब्लड चूस लो उसका। और जो लास्ट और फोर्थ जो उसका चार्ज है वो क्या है कि तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। बिना टिकट यात्रा करना एक कानूनी जुर्म कहलाता है। राइटर टिकट लेके यात्रा कर रहा, मॉस्किटो के पास कोई टिकट नहीं है, बिना टिकट वाला टिकट वाले को परेशान कर रहा, तो कैसे सहन करेगा? वो कहता है चलो मैं तुमको मृत्युदंड की सजा सुनाता हूं। और राइटर ने पूरी कोशिश की उसे मारने के लिए। मच्छर आगे आगे होता है, राइटर पीछे पीछे दौड़ रहा है, कभी अखबार मारता है, कभी हाथ को मारता है उसको। यानी जितनी भी वो टैक्टिस अपना सकता था, जितनी वो चाल चल सकता था, वो हर चाल उसने चली, लेकिन क्या हुआ? इट वॉज ऑल इन वेन। अर्थात सब व्यर्थ रही उसकी चालें, वो सफल नहीं हो पाया उसे पनिशमेंट देने में। जब पनिशमेंट नहीं दे सका तो वो थोड़ा सा फिलोसॉफिक हो जाता है। अब वो ट्रेन रूपी जर्नी से वो लाइफ रूपी जर्नी पे आ जाता है। कहता है कि चल जा, मैंने तुझे माफ़ किया, क्योंकि मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी आर टू बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ह्यूमंस और मैनकाइंड। बाई शोइंग mercy and magnanimity, he wants to recover his lost prestige। कहता है मेरी जो प्रेस्टीज खो गई, मैंने जो अपने आप को अपमानित महसूस किया तुम्हारे सामने, मैं उसे पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। कैसे? दया करके, उदारता दिखा करके, क्योंकि मानव की श्रेष्ठ गुण माने जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर मानवता है, उदारता है, दया है, तो वो मानव है। जिसके अंदर ये नई चीज़ें देखिए तो मानव नहीं होता, वो एक तरीके से क्या है? ह्यूमन एनिमल होता है, यानी नर पशु होता है। तो राइटर जब नहीं मार पाया तो उसे कहता है कि मैंने तुझे माफ़ किया, और उसे मारने का जो आइडिया है वो ड्रॉप कर देता है। तो कहने का अर्थ है कि लेखक यह समझाना चाहता है कि हमें कभी किसी को हार्म यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को, हर प्राणी को समान रूप से जीवित या जिंदा रहने का अधिकार है। कोई सुपीरियर नहीं है यहाँ पर संसार में। हमें कोई प्राइड नहीं रखना चाहिए, कोई घमंड नहीं करना चाहिए। You know, nobody is immortal in this world. Immortal means amar. Everyone who comes in the world goes one day. हर व्यक्ति जो इस संसार में आता है एक दिन जाना होता है। देखिए, इसलिए राइटर कहता है, एक मैसेज देना चाहता है इस निबंध के माध्यम से कि हमें कंप्रोमाइज और गुड विल के साथ रहना सीखना चाहिए। हर व्यक्ति, हर प्राणी को हमें जीने का अधिकार देना चाहिए, क्योंकि उसे स्वयं अधिकार है इस संसार में रहने का। हम किसी के जीवन को छीनने का अधिकार नहीं रखते हैं। तो ये इस लेसन का
एक संक्षिप्त विवरण है जो मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही समझाया है। बुक्स आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं अभी पैसेज एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप अरेंज करें, यदि हो पाती है तो मुझे बताएं आप कॉल करके कि आपके पास पुस्तकें हैं, तो मैं फिर आपको एक्सप्लेन भी करना समझाऊंगा कि किस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। देखिए, प्रोज में से जो भी क्वेश्चंस आदि आते हैं मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रोज में से किसी भी लेसन में से 2 पैसेज आते हैं, उनमें से हमें एक पैसेज को एक्सप्लेन करना पड़ता है, रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट। और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं 2, उनमें से एक करना होता है शॉर्ट क्वेश्चन, अबाउट 30 वर्ड्स में उसका आंसर देना होता है। और फिल इन दी ब्लैंक्स भी आते हैं, तो मैं आपको साथ ही साथ फिल इन दी ब्लैंक्स भी भेज रहा हूँ, उनके आंसर भी साथ में दे रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन भी मैं आपको आंसर सहित भेज रहा हूँ। आप उन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और उन्हें याद भी करते रहें। और आपको एक सूचना और कि ग्रामर जल्दी स्टार्ट करूँगा मैं। कुछ बच्चों का मेरे पास ये मैसेज आ रहा है कि सर ग्रामर कमज़ोर है, हमारी ग्रामर भी पढ़ा। ग्रामर पढ़ाने के लिए देखिए ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता है, जो कि अभी मेरे पास यहाँ उपलब्ध नहीं है, और मैं कोशिश में हूँ जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो जाए, बिकॉज ब्लैक बोर्ड इज़ वन ऑफ दी इसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का एक इसेंशियल पार्ट है, और उसी पर मैं आपको एग्जाम्पल सहित समझा सकता हूँ। इसलिए ब्लैक बोर्ड जिस दिन मेरे पास होगा, मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। जो कुछ भी मैं समझा रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो मुझे आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आप कॉल कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद, थैंक यू।